آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ سپریم کورٹ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی موقف رکھا برقرار۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا آج کا دن انتہائی اہم۔ اسرائیلیوں کے خلاف حملوں میں ملوث فلسطینیوں کے ارکان خاندان کو ملک بدر کرنے کی سازش۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں متنازع قانون منظور۔ موسیٰ ندی کا احیا پروجیکٹ، چیف منسٹر ریونت ریڈی کی پد یاترا کا آغاز۔ چارمینار کے پاس جلسے عام منعقد کرنے کا اعلان۔ اور سرکاری ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے لیے کابینی ذیلی کمیٹی کی تشکیل، 2 وزراء بھی شامل۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے ایک متنازع قانون منظور کیا ہے جس کے تحت اسرائیلی شہریوں سمیت اسرائیلیوں کے خلاف حملوں میں ملوث فلسطینیوں کے خاندان کے افراد کو ملک بدر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی پارٹی کی جانب سے پیش کردہ نیا قانون جمعرات 7 نومبر کو منظور کیا گیا، جس کے حق میں 61 اور مخالفت میں 41 ووٹ آئے۔ وزیر داخلہ کسی ایسے فرد کے فرسٹ ڈگری رشتہ دار کو ملک بدر کر سکتا ہے جس نے حملہ کیا تھا، اگر اسے اسرائیلیوں کے خلاف حملے یا حملے کی حمایت کا پیشگی علم ہو۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 22 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جمعرات کو فلسطینی سیکورٹی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں اپنی شدید بمباری اور توپ خانے سے گولہ باری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ خبروں کے مطابق جبالی پناہ گاہ کیمپ کے مغرب میں فلسطینیوں کے ایک اجتماع کو اسرائیلی توپ خانے نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے، جنہیں سول گاڑیوں میں ہاسپٹلز منتقل کیا گیا۔ جموں کشمیر کے سوپور ایس پی دیویا نے بتایا کہ سوپور کے سگی پورہ گاؤں میں 8 نومبر کو 2 دہشت گرد مارے گئے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان دہشت گردوں کی شناخت کی جا رہی ہے اور ان کے پاس سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ گزشتہ رات سیکورٹی فورسز کو سوپور کے سگی پورہ گاؤں میں 2 دہشت گردوں کے بارے میں اطلاع ملی تھی۔ رات کو سوپور کے سیکورٹی فورسز کو خبر ملی تھی، اسپیسیفک انپوٹ ہے 2 ٹیررسٹ کے بارے میں سگی پورہ سوپور علاقے میں، تو ہم نے ترنت جوائنٹ سیکورٹی فورسز کی کارڈن اینڈ سرچ آپریشن شروع کیا ہے۔ اس وقت ٹیررسٹ نے فائر انہوں نے کھولے تھے، تو تب آپریشن شروع ہوا تھا۔ پھر ہم نے راتوں رات پورے سویلینس کو بہت سیف طریقے سے ایواکویٹ کیا۔ پھر اب تک آپریشن چل رہی تھی۔ آپریشن کے اینڈ پہ 2 ٹیررسٹ مارے گئے ہیں، ان کا آئیڈینٹی ہم پتہ کر رہے ہیں۔ بہت سارا آرمز اینڈ امونیشنز ریکوری ہوا ہے، تو وہ ہم بتائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ 8 نومبر کو کانگریس کی زیر قیادت ہندوستانی بلاک پر الزام لگایا کہ وہ جموں کشمیر سے آئین کو ہٹانا چاہتا ہے، اور زور دے کر کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت وہاں آرٹیکل 370 کو بحال نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کانگریس پر ایک ذات کو دوسری ذات کے خلاف کھڑا کرنے کا الزام بھی لگایا اور لوگوں کو متحد رہنے کی تلقین کی۔ 20 نومبر کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے مہاراشٹر میں اپنی پہلی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ انڈیا بلاک دلتوں اور آدیواسیوں کو مشتعل کرنے کے لیے کالی کتابوں کو آئین کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ آزادی کے 75 سال بعد جموں کشمیر میں بابا صاحب کا سنویدھان لاگو ہوا ہے، لیکن یہ کانگریس اور اس کے ساتھیوں کو یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میں کانگریس اور یہاں اگاڑی والے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے ایجنڈے کو دیش میں بڑھاوا دینے کی کوشش مت کرو۔ کشمیر کو لے کر الگاؤ وادیوں کی بھاشا مت بولو۔ یاد رکھو، تمہارے یہ منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور جب تک مودی پر جنتا جناردن کا آشیرواد ہے، کانگریس والے تم کشمیر میں کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ کشمیر میں آپ کیول اور کیول
बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर्स और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को जुमा को इनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए रेवंत रेड्डी को इनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी और उनकी तवील उम्र और सेहतमंद जिंदगी के लिए प्रार्थना भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी तालीमी इदारे का अक़लियती दर्जा इसलिए ख़त्म नहीं होगा कि पार्लियामेंट ने इस इदारे को कंट्रोल या इसकी निगरानी के लिए कोई कानून बनाया है या ये इदारा गैर अक़लियती अफराद के ज़रिए चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती दर्जे पर फैसला सुनाते हुए उसे बरकरार रखने का ऐलान किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 7 जजेस की बेंच ने इस केस का फैसला 3-4 की अक्सरियत वोट से सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में कायम आईनी बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JP पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं, ने 1968 के इस अजीज बादशाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया फैसले को कल अदम करार दिया, जिसमें कहा गया था कि पार्लिमानी कानून के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती दर्जा खत्म हो चुका है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मुकदम किया, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियती हैसियत को बरकरार रखा गया है। सदर मजलिस ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अहम दिन है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि 1967 के फैसले ने AMU की अक़लियती हैसियत को गलत तरीके से मुस्तरद किया था। उन्होंने आईन हिंद के आर्टिकल 30 का हवाला दिया, जिसके तहत अक़लियतों को अपने तालीमी इदारे कायम करने और उनका इंतज़ाम अपने तरीके से चलाने का हक़ हासिल है। सदर मजलिस ने AMU के तमाम तुलबा और असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि अक़लियतों के ख़ुद को तालीम देने के हक़ को बरकरार रखा गया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट में रुकावटें हायल करने वाले अफराद को इंतबाह दिया है कि इस प्रोजेक्ट में रुकावटें हायल करने पर बुलडोज़र चढ़ाते हुए प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। मूसा नदी की सफाई पर आज भुवनगिर जिले में की गई पदयात्रा के बाद अवामी जलसे से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी ये पदयात्रा सिर्फ ट्रेलर है, असल फिल्म जनवरी में दिखाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जनवरी के पहले हफ्ते में नलगोंडा जिले के वाड़ापल्ली से हैदराबाद तक इनकी पदयात्रा रहेगी और चार मीनार के पास लाखों अफराद के साथ एक भारी जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। మీరెవడెవడు వండుకుంటాడో రాండి, మీరు మీ చుట్టాలు మీ జాతి అంతా వచ్చి అడ్డం పట్టుకున్న బుల్డోజర్ పెట్టి తొక్కిచ్చి మూసీ నది ప్రక్షాళన చేసి తీరుతామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా। साबिक वजीर और कारगुजार सदर BRS तारक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की नलगोंडा जिले में मूसा नदी पदयात्रा को एक सियासी हरबा करार दिया। उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा का मकसद कांग्रेस की जानिब से मूसा नदी को कई दहाइयों से नज़रअंदाज किए जाने के मामले से अवामी तवज्जो हटाना है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया कि उन मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करें जिनके मकानात मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के तहत हैदराबाद में मुनहदम किए गए। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम जारी किए। ये कमेटी सरकारी मुलाजिमीन, गजटेड ओहदेदारों, असातिज़ा, वर्कर्स और पेंशनर्स की जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से पेश किए गए मसाइल को हल करने की हुकूमत को सिफारिश करेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में काबीनी सब कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें 2 वज़रा को भी शामिल किया गया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट पर अवाम में पाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करने के लिए आज अपनी सालगिरह के मौके पर
भुवनगिर जिले के वलीगुंडा मंडल के संगम गांव से पदयात्रा शुरू की। उनकी ये पदयात्रा 2.5 किलोमीटर तक जारी रही, जिसमें रियासती वुज़रा, कांग्रेस के अरकान मुक़न्नना और पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। चीफ मिनिस्टर ने आज सुबह अपने अरकान ख़ानदान के साथ अपनी 55वीं सालगिरह के मौके पर भुवनगिर जिले के यादगीर गुट्टा मंदिर के दर्शन किए। बाद अज़ां व मूसा नदी को असली हालत में लाने के प्रोग्राम से आवाम को वाकिफ करवाने के लिए पदयात्रा पर निकल पड़े। तेलंगाना हाई कोर्ट में पार्टी इन्हराफ करने वाले अरकान असम्बली को नाअहल करार देने से मुताल्लिक़ सिंगल रुकनी बेंच के अहकाम पर सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से डिवीज़न बेंच में की गई अपील की समाअत का सिलसिला आज भी जारी रहा। चीफ जस्टिस आलोक आराधे पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने आज इस केस की समाअत की। इस मौके पर बीआरएस पार्टी की जानिब से सीनियर वकील मोहन राव ने समाअत में हिस्सा लेते हुए डिवीज़न बेंच को बताया कि सिंगल रुकनी बेंच ने जो अहकाम जारी किए हैं, इस पर डिवीज़न बेंच को अपील करने की असम्बली के सेक्रेटरी को इख्तियार नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि बीआरएस पार्टी की जानिब से पार्टी इन्हराफ करने वाले अरकान असम्बली को ऐवान की रुकनियत से नाअहल करार देने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर स्पीकर असम्बली को एक मुकर्रर वक्त में फ़ैसला करने की ज़रूरत होती है। बीआरएस का मौक़िफ़ जानने के बाद अदालत ने इस केस की समाअत पीर 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात की फ़ीस की अदायगी के सिलसिले में डायरेक्टर इम्तिहानात ने शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 18 नवंबर को 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान की फ़ीस अदा करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। 50 रुपये देरीना फ़ीस के साथ 2 दिसंबर तक, 200 रुपये फ़ीस के साथ 12 दिसंबर तक और 500 रुपये देरीना फ़ीस के साथ 21 दिसंबर तक भी इम्तिहान की फ़ीस दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई है। रेगुलर तलबा को तमाम मज़ामीन के लिए 125 रुपये या इससे कम मज़ामीन के लिए 110 रुपये, 3 या इससे ज़ायद मज़ामीन में 10वीं जमात के नाकाम तलबा के लिए 125 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मूसा नदी की सफाई के सिलसिले में आज की गई पदयात्रा में रुकावटें हायल करने बीआरएस कायदीन के ऐलानात के पेश नज़र पुलिस ने भुवनगिर ज़िले में कई मकामात पर बीआरएस कायदीन को हिरासत में ले लिया। बादशाह कायदीन को घर पर नज़रबंद कर दिया गया। पुलिस ने एहतियाती इक़दामात के तौर पर नलगुंडा के साबिक़ रुकन असम्बली के भोपाल रेड्डी, मुनुगुर के साबिक़ रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी और नकरेकल के साबिक़ रुकन असम्बली सी लिंगैया समेत बीआरएस के कई कायदीन को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना हुकूमत ने टेट की फीस में कमी कर दी है। टेट के एक पेपर 1 या पेपर 2 लिखने वालों को दरख्वास्त फॉर्म के साथ वसूल किए जाने वाले 1000 रुपये की फ़ीस में कमी लाते हुए इसे 750 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह पेपर 2 के लिए वसूल की जाने वाली 2000 रुपये फ़ीस को 1000 रुपये करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा हालिया दिनों में मुनक़िदा टेट इम्तिहान में अहलियत पाने वाले उम्मीदवारों को फीस से मुस्तस्ना करार रखा गया है। मेघा इंजीनियरिंग कंपनी ने रंगारेड्डी ज़िले के मीर खान पेट के नेट ज़ीरो वैली में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की इमारत के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। कंपनी के डायरेक्टर रेड्डी और वाइस प्रेसिडेंट शिवा कुमार की मौजूदगी में संग बुनियाद की तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए रवि रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की यौम तासीस यानी 2 जून तक यूनिवर्सिटी की इमारत के पहले मरहले के कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़िले रंगारेड्डी की एक अदालत ने ड्रग्स केस में युगांडा की एक खातून को 13 साल कैद की सज़ा सुनाई। बताया गया है कि साल 2021 में युगांडा से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून हैदराबाद में ड्रग्स मुंतकिल करने के दौरान पकड़ी गई थी। DRI के अहदेदारों इस खातून को हिरासत में लेते हुए इसके कब्जे से 25.35 करोड़ की हेरोइन को जब्त किया था। गुज़िश्ता 3 साल से एक केस रंगारेड्डी ज़िले की अदालत में ज़ेर दौरान था। अदालत ने आज इस केस का फैसला सुनाते हुए खातून को 13 साल कैद की सज़ा के साथ 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया।
महकमे कबाली बहबूद की जानिब से मंचरियाल में चलाए जाने वाले आश्रम स्कूल के मजीद 2 तलबा को जुमा को मुआयना समेत ग़िज़ा से मुतासर होने की इतलात पर हॉस्पिटल से मुंतकिल किया गया। एक तालिबा को क़ई शुरू हो गए जबकि दूसरी तालिबा ने पेट में दर्द की शिकायत की। इन्हें दवाखाने से रुजू किया गया जहां इनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। दूसरे तलबा के वालिदीन ने हॉस्पिटल में फराहम किए जाने वाले ग़िज़ा पर तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती मौक़ूफ़ रखा बरकरार। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा आज का दिन इंतहाई अहम। इजराइलियों के खिलाफ हमलों में मुलविस फ़लस्तीनियों के अरकान ख़ानदान को मुल्क बदर करने की साजिश। इजरायली पार्लियामेंट में मुतनाज़ा कानून मंजूर। मूसा नदी का अहिया प्रोजेक्ट। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की पदयात्रा का आगाज। चारमीनार के पास जलसे आम मुनक़िद करने का ऐलान। और सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई के लिए काबीनी ज़ैली कमेटी की तश्कील, 2 वुज़रा भी शामिल। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।